Hello students, good morning. Today I will teach you the remaining portion of physics chapter 12 electricity. Today I will teach you part 3rd of the chapter 12 electricity. The topic is Ohm's law. First of all, we have to understand what is Ohm's law. Ohm established a relation between the potential at the both end of a conductor and current following it. He found that the relation between the potential difference and electric current is directly proportional. Hence, let's try. We have to study Ohm's law. Ohm's law. According to Ohm, the potential difference across the two ends of a conductor is directly proportional to the current following it. Mathematical expression can be given as, if we represent potential difference by a letter B, then B is directly proportional to I, where the meanings of B and I are generalized. B for potential difference between the two ends of a conductor and I is the current flowing in that conductor. On removing constant of proportionality, constant of on solving it further, or
और B equals I R. Where R is equal to resistance. R is equal to resistance. Now we can understand Ohm's law very easy way. According to Ohm, when a potential difference is created between the two ends of a conductor, then the potential difference is directly proportional to the current flowing in it. This is known as Ohm's law. Verification of Ohm's law, if we plot a graph between B and I, अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के बीच एक ग्राफ प्लॉट करते हैं, दिस ग्राफ इज ए स्ट्रेट लाइन, तो ग्राफ में कैसा मिलता है? स्ट्रेट लाइन मिलता है. दैट प्रूव्स B is directly proportional to I. If you will plot a graph between B and I from an activity, you will find the graph is a straight line that suggests B and I are directly proportional. Now we will study about the combination of resistors. Okay, we will study about the combination of resistors. Students, suppose in a circuit we have to join a lot of resistors to obtain desired electric current. For example, if we want less electric current, we have to increase the potential difference or current. Let's understand. B by I equals R. Here, if we want more electric current, we have to decrease the resistance. But if we want, this means 1 upon I is directly proportional to R. 1 upon I is directly proportional to R. This means if R is increased, I is decreased. So to obtain desired electric current, we have to increase or decrease the quantity of resistance in a circuit. So how different resistors are joined in an electric circuit, we will learn in combination of resistors. First we write combination of resistors. Combination of resistors. First, think about an electric circuit.
Just stop the video. Just stop the video. Students, I have drawn two figures of electric circuit. In this electric circuit, I have joined three resistors R1, R2 and R3. Such combination of resistors is called series combination. This type of combination is called series combination. Here, this is the battery that drive charge in a conductor. ये बैटरी है. आप जानते हैं अगर ये बैटरी नहीं रहेगी तो कंडक्टर में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं हो पाएगी. यही कंडक्टर के दोनों एंड पर पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करता है. यही वह सिस्टम है, यही हमारे पास वह मेथड है जो इलेक्ट्रिक कंडक्टर के बोथ एंड पर पोटेंशियल क्रिएट करता है. तो बच्चों हम देख रहे हैं पॉजिटिव डायरेक्शन इधर है, नेगेटिव इधर है, तो करंट का डायरेक्शन कुछ यूं होगा. अब विचार करते हैं, यहाँ पे हमने टू डिवाइस लगा रखे हैं. अमीटर, इट्स फंक्शन इज टू मेजर द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर. किसी सर्किट में फ्लो होने वाले इलेक्ट्रिक करंट को ये नापता है और हमें एम्पियर में बताता है. बच्चों ये है हमारा वोल्ट मीटर. इसे हमने कंबाइन कर रखा है तीनों सीरीज में जुड़े हुए रेजिस्टेंस पर पोटेंशियल मेजर करने के लिए. तो बच्चों यहाँ पे हमने कैसे जोड़ा है, सीरीज में जोड़ा है. अब यहाँ पे हमने कि इस रेजिस्टेंस के लिए कितना पोटेंशियल डिफरेंस है. इस रजिस्टर के बोथ एंड, इस रजिस्टर के दोनों एंड पे पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा. फिर R2 के लिए हमने एक दूसरा वोल्ट मीटर लगा दिया है कि R2 के दोनों, ये एक रजिस्टर है, R2 के दोनों एंड पर पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा. इसी प्रकार हमने रजिस्टर 3 रिप्रेजेंटेड बाय R3 के बोथ एंड पर पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए हमने थर्ड वोल्ट मीटर लगा रखा है. और यहाँ पे हम की लगा रखे हैं. की देख रहे हैं आप लोग, की क्या है, क्लोज है, क्लोज है. अब करंट फ्लो हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है. तो आइए हम ये विचार करते हैं करंट. अब करंट को निकलने के लिए एक ही रास्ता है, एक ही रास्ता है बच्चों. तो यहाँ पे R1, R2 और R3 के थ्रू फ्लो होने वाला इलेक्ट्रिक करंट सेम होगा, इलेक्ट्रिक करंट सेम होगा. अब मान लेते हैं बच्चों कि इसमें I1, I करंट फ्लो हो रहा है, I एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है. तो आप जानते हो कि इसमें भी I करंट ही फ्लो होगा और इसमें भी I ही करंट फ्लो होगा. लेकिन जब एक रजिस्टर को फेस करने के बाद, एक रजिस्टर को फेस करने के बाद कुछ तो फोर्स, जो इलेक्ट्रिक फोर्स, जो पोटेंशियल है, कुछ डिस्टर्ब होगा. तो यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा आपका, पोटेंशियल डिफरेंस मान लेते हैं यहाँ पे हमारा V1 है. अब एक रजिस्टर को पार करने के बाद जब अलग जाएगा दूसरे रजिस्टर के पास तो कुछ पोटेंशियल डिफरेंस में चेंजिंग आएगी. और यहाँ मान लेते हैं कि वो V2 होगा और यहाँ पे आके V3 होगा. तो आप मेरी इस बात को ध्यान से समझिए. अब बच्चों एक टर्म यहाँ भी हम आपको दिखाते हैं. यहाँ भी एक इलेक्ट्रिक सर्किट है जिसमें हमने जोड़ रखे हैं 3 रजिस्टर्स R1, R2 और R3 को. बच्चों इस प्रकार का कॉम्बिनेशन हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन कहलाता है. अब इसमें हम विचार करते हैं एज सून एज की इज क्लोज. जो हम की को क्लोज करते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है. तो बच्चों यहाँ पे थिंक कीजिए कि जो प्रीवियस फिगर है उस फिगर में और इस फिगर में क्या डिफरेंस आता है.
बच्चों क्या डिफरेंस आता है सर? यहाँ पे आप देख रहे हैं कि करंट को निकलने के लिए, यहां से करंट को पास होने के लिए 3 पाथ है। आप वो चाहे तो R1 से भी होके जाएगा, R2 से भी होके जाएगा, R3 से भी होके जाएगा। तो जितना करंट यहाँ पे कुल टोटल फ्लो होके आएगा वो 3 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। लेकिन कितना करंट किसमें जाएगा ये डिपेंड करेगा इस रजिस्टर्स के रेजिस्टेंस पे। तो हेंस अब हम ये कह सकते हैं कि इन R1, R2 और R3 रजिस्टर्स में बच्चों जो करंट होगा वो सेम नहीं होगा और अलग अलग होगा। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं यहाँ पे करंट होगा हमारा I1, यहाँ पे करंट होगा हमारा I2 और यहाँ पे हमारा करंट होगा बच्चों I3। लेकिन अब बच्चों ये बताओ कि क्या दोनों एंड पर अगर इस पॉइंट का नाम हम ये रख लें और इस पॉइंट का नाम हम B रख लें तो A और B के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस तो बच्चों सेम ही होगा ना। जो पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे होगा वही इसके लिए भी होगा, वही इसके लिए भी होगा और वही इसके लिए भी होगा। तो यहाँ पे आपके क्या सेम है बच्चों? यहाँ पे आपके बच्चों पोटेंशियल डिफरेंस तीनों के लिए सेम है, लेकिन करंट तीनों के लिए अलग अलग है। तो अब जब भी आप पैरेलल कॉम्बिनेशन देखोगे तो क्या आपको पता चला? यू नो दैट द करंट इन ऑल रजिस्टर्स आर डिफरेंट। अलग अलग करंट होते हैं लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस सबके सारे रजिस्टर्स के दोनों एंड पर सेम होता है। जो पोटेंशियल डिफरेंस R1 के दोनों एंड के बीच होगा वही पोटेंशियल डिफरेंस R2 के दोनों एंड के बीच होगा और वही पोटेंशियल डिफरेंस R3 के दोनों एंड के बीच होगा। समझ गए बच्चों? अब यहाँ करंट वही है, अलग अलग है। जो करंट इसमें फ्लो होगा तो भाई जितना करंट जा रहा है वो 3 भागों में बढ़ जाएगा, 3 पार्ट में बढ़ जाएगा, लेकिन इक्वल नहीं बटेगा। इक्वल नहीं बटेगा जब इनका रेजिस्टेंस इक्वल होगा। तो समझ गए कि टोटल करंट 3 पार्ट में बटा हुआ है। और यहाँ पे क्या हुआ बच्चों? यहाँ पे भाई एक ही पाथ है। आप देख रहे हो आपने तीनों रजिस्टर R1, R2, R3 को कैसे सीरीज में जोड़ रखे हो, एक श्रृंखला में जोड़ रखे हो। तो जो भी करंट यहाँ से पास हुआ वो पहले आपके R1 पे आया, लेकिन भाई कहीं और तो रास्ता है नहीं उसके निकलने का, तो ये निकलेगा इसी में से पूरा आएगा, पार करेगा। तो जितना करंट टोटल करंट जो आया यहाँ निकला वही करंट आपके इसमें आएगा टोटल, और वही करंट आपके इसमें आएगा। तो बच्चों सीरीज में करंट सारे रजिस्टर्स में सेम होते हैं, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस तो बच्चों एक ऑब्स्टेकल पार करने में, एक अवरोध पार करने में कुछ एनर्जी लॉस हो जाएगी। इस रेजिस्टेंस को पार करने में, इस रजिस्टर को पार करने में कुछ एनर्जी लॉस हो जाएगी। तो जितना पोटेंशियल डिफरेंस R1 के दोनों एंड पे होगा, R2 के दोनों, R2 यहाँ रजिस्टर नंबर 2 है, उसके दोनों एंड पर पोटेंशियल डिफरेंस थोड़ा इससे कम हो जाएगा। तो बच्चों जब हम R3 की बात करें तो उसके दोनों एंड की पोटेंशियल डिफरेंस थोड़ा और डिस्टर्ब हो जाएगी। क्यों? क्योंकि पहले से ही हमारी पावर कम होती जा रही है। हमें यहाँ एक फर्स्ट रजिस्टर को पार करने में कुछ एनर्जी लॉस करनी पड़ी, फिर आगे फिर सेकेंड रजिस्टर आ गया, फिर हमें कुछ एनर्जी लॉस करनी पड़ी, फिर रजिस्टर। इसी प्रकार से अगर आप R4 जोड़ते, R5 जोड़ते तब भी क्या होता? तब भी आपका पोटेंशियल डिफरेंट होता जाता। समझ गए बच्चों? अब हम एक नया टर्म लेके आते हैं, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो बच्चों अब मैं आपसे पूछता हूं, मुझे बताने की कोशिश करो, अगर R1 इस स्थिति में जब तीनों कैसे जुड़े हुए हैं, कैसे जुड़े हुए हैं तीनों आपके जुड़े हुए हैं सीरीज में। कैसे जुड़े हुए हैं? सीरीज में। तो इन तीनों के यानी वह रजिस्टर
कितना रेजिस्टेंस देगा, जो इन तीनों के जितना सबका मिला करके रेजिस्टेंस काम करे वह कितना होगा, उसे इक्विवेलेंट कहते हैं। मान लेते हैं आप कहते हो सर तीनों का मिला करके यह एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, यह एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है। तो बच्चों इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को हम अब ये कैसे ऐड किए गए हैं सीरीज में, तो हम दिखाते हैं RS से। दिस मीन्स इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कंबाइंड इन सीरीज। तो सीरीज में कंबाइन किए गए n रजिस्टर्स के इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को हम RS से रिप्रेजेंट करते हैं। तो बच्चों अब हम अगर पूछें कि इन दोनों के इंड यानी ये दोनों अगर ये RS है तो ये कुल कितना रेजिस्टेंस प्रोड्यूस करेगा, इन तीनों के रेजिस्टेंस के बराबर। समझ में आ गया बच्चों? तो इसको क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस। कैसा रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ n रजिस्टर्स, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ n रजिस्टर्स कंबाइंड इन सीरीज। यस फॉर सीरीज। अब बच्चों यहाँ पर हम सोचते हैं अगर इन सब का सोचिए कि एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऐसे बन रहा है, अगर यानी पूरे का जितना सबका तीनों का असर आए वो अगर एक से दिखाएं तो कितना असर आएगा, तो उसको हम बोलेंगे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो बच्चों इसको हम किस लेकर दिखाएंगे, RP से। इसको दिखाएंगे RP से। अब हम कहेंगे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ n रजिस्टर्स कनेक्टेड इन पैरेलल। तो बच्चों मैं पहले ही आपसे बताया था कि हमें दो कंडीशंस फेस करने होते हैं। समटाइम्स हमें कम करंट चाहिए, तो देखो बच्चों हम क्या करेंगे, जब हमें करंट कम चाहिए तो हम क्या करेंगे, सर्किट में रेजिस्टर्स को पैरेलल ऐड कर देंगे जिससे करंट बढ़ जाएगा। करंट क्या होगा, तब बढ़ जाएगा। तो किसी भी एक में जितना पूरे सर्किट में करंट फ्लो हो रहा होगा तो प्रत्येक जितने भी ईच रेजिस्टर यहाँ जोड़े जाएंगे सब में टोटल करंट से कम करंट हो जाएगा ना। और इसी प्रकार से इनका जो रेजिस्टेंस होगा ये इनका जो टोटल इक्विवेलेंट आएगा, जो टोटल इक्विवेलेंट, क्योंकि भाई ऐसा तो तभी हो सकता है, करंट तभी कम होगा जब रेजिस्टेंस बढ़ता है, क्योंकि B/I=R होता है। तो ऐसे में हम इन तीनों का यानी अगर एक का किसी एक मान लेते हैं, अगर R1 का रेजिस्टेंस है 1 ओम मान लेते हैं, तो अगर हम बच्चों R2 को भी जोड़ लेते हैं तो इन दोनों का जो कंबाइन ताकत होगी रेजिस्टेंस की वो 1 से भी कम हो जाएगी, 1 से भी कम हो जाती है। तो जो हमको कम रेजिस्टेंस लेना होता है बच्चों तो हम जोड़ते हैं पैरेलल में, और जब ज्यादा रेजिस्टेंस लेना होता है तो ज्यादा रेजिस्टेंस लेना होता है। ठीक, जब ज्यादा रेजिस्टेंस लेना होता है तो हम किसमें जोड़ते हैं, सीरीज में। अगर इसमें R1 की वैल्यू 1 हो, R2 की वैल्यू भी 1 हो, R3 की वैल्यू भी 1 हो, तो टोटल जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बनेगा तीनों का 1 + 1 + 1 वो 3 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे सोचते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे हो जाएगा आपका अगर 1/3 हो जाएगा। इन तीनों का क्या हो जाएगा ऐड करने पे 1/3, जबकि अकेले का असर कितना है 1 हो। अब अगर हमने तीनों को जोड़ लिया पैरेलल में तो 1 से भी कम हो गया, 1/3 हो गया। तो यहाँ पे करंट यानी हमने क्या कम कर लिया, रेजिस्टेंस कम कर लिया, और यहाँ पे रेजिस्टेंस बढ़ा दिया। तो जब रेजिस्टेंस कम करना होगा तो हम पैरेलल कंबाइन करेंगे, और अगर हमें रेजिस्टेंस बढ़ाना होगा तो हम सीरीज में आएंगे। तो बच्चों आइए हम देखते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होता है और कैसे दर्शाती है। तो आप जान गए
तो अब हम इसका डेरिवेशन करते हैं नेक्स्ट वीडियो में अपने। आई हैव ड्रॉन 2 फिगर्स। तो स्टूडेंट्स मैंने यहाँ आप लोगों के लिए 2 फिगर ड्रा किया है। आइए इसको समझते हैं। तो बच्चों यहाँ पे हमने देखा कोई करंट आ रहा है जिसके लिए हमने इलेक्ट्रिक सोर्स नहीं जनरेट किया है, और ये इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन है जो फ्लो हो रहा है। अमीटर को जोड़ा गया सीरीज में, जिससे हम क्या नापते हैं, करंट नापते हैं। तो बच्चों और ये करंट बाहर आ रहा है और फिर नीचे जा रहा है। तो सर्किट का केवल जो हमको आवश्यकता है कि हमने वही पार्ट दिखाया है। तो बच्चों अब देखते हैं कि यहाँ पे करंट आया। अब जितना करंट आया वो करंट के लिए कहीं कंडक्टर से कोई ब्रांच नहीं निकलता, तो सारे जितना भी करंट आया वो रजिस्टर R में इंटर किया, फिर कोई और ब्रांच नहीं गया, फिर वो पूरा करंट रजिस्टर 2 में इंटर किया, और फिर वो पूरा करंट हमारा रजिस्टर 3 में इंटर करता है, और फिर वो पूरा करंट हमारा रजिस्टर 4 में इंटर करता है। तो बच्चों हम ये दिखाना चाहते हैं कि यानी जब हम कंबाइन करते हैं सीरीज में n रजिस्टर्स को, तो सभी रजिस्टर में जो करंट होगा वो समान होगा। अर्थात अगर इधर भी हम नापेंगे करंट टोटल, इधर भी नापेंगे तो टोटल बराबर रहेगा। लेकिन बच्चों ये क्या है, हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है। तो इन दोनों A और C के बीच के पोटेंशियल डिफरेंस कुछ और होगा। अब एक रजिस्टर को पार कर लेंगे। रजिस्टर क्या होता है, जो करंट फ्लोइंग ऑफ करंट का विरोध करता है, अपोज करता है। तो बच्चों यहाँ पर इस विरोध को झेलने के बाद कुछ पोटेंशियल यहाँ कम हो जाएगी, कुछ पोटेंशियल यहाँ कम हो जाएगी। तो R2 के लिए यहाँ पोटेंशियल कुछ और होगा, यहाँ पोटेंशियल कुछ और होगा, यहाँ पोटेंशियल कुछ और होगा। तो इस प्रकार सीरीज कॉम्बिनेशन में सभी रजिस्टर्स में करंट सेम होता है, लेकिन पोटेंशियल अलग अलग होता है। तो बच्चों सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए हम पहले यही लगाते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। बच्चों SERIES सीरीज कॉम्बिनेशन। बच्चों देखते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है। बच्चों हमें टोटल अगर निकालना हो कि टोटल पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, टोटल आइए निकालते हैं टोटल पोटेंशियल डिफरेंस। टोटल B इक्वल टू क्या होगा बच्चों, इसको ऐड कर लेते हैं, इसका ऐड कर लेते हैं, सबको ऐड कर लेते हैं। तो B1 प्लस B2 प्लस B3। इसी प्रकार बच्चों अगर आपके पास और भी हैं तो आप दे सकते हो Bn तक। फिर देखते हैं बच्चों क्या लिखते हैं। हम जानते हैं कि ओम के नियम से, ओम का नियम क्या है, B इक्वल IR, B इक्वल IR है। तो बच्चों हम B इक्वल टू क्या लिखते हैं, I इंटू R इज इक्वल टू। अब बच्चों यहाँ पे तो I सब में सेम है, केवल R अलग अलग है। तो हम क्या लिखेंगे, IR1 I इंटू R1 प्लस I इंटू R2 प्लस I इंटू R3 प्लस डैश 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 I इंटू RN। तो बच्चों हम देख रहे हैं कि दोनों तरफ हम चाहें तो I कॉमन, इधर भी हम I कॉमन ले सकते हैं। तो क्या आएगा हमारा बच्चों आएगा I इंटू R इज इक्वल टू, अगर हम I सब में कॉमन ले लें सारे टर्म में, तो बच्चों क्या बच जाएगा, यहाँ पे R1 प्लस R2 प्लस R
R3 प्लस डैश 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 Rn, क्या हो जाएगा Rn। तो बच्चों अगर हम दोनों तरफ कंसीडर कर दें बाय द कंसीडरेशन ऑफ I बोथ साइड, वी गेट, हम क्या पाते हैं बच्चों, हमें मिलता है R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डैश 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 Rn, क्या मिलता है बच्चों Rn। तो ये क्या है हमारा Rs, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ ऑल रजिस्टर्स कनेक्टेड इन सीरीज। तो बच्चों इन टोटल रजिस्टर का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा उसे हम Rs से दिखाएंगे और वो किसके बराबर होगा, सारे पार्टिकुलर रजिस्टर्स के सम के बराबर होगा। तो आइए, ये था हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन। अब पढ़ लेते हैं हम पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो बच्चों पैरेलल कॉम्बिनेशन में हम पढ़ते, तो दिस इज आवर पैरेलल कॉम्बिनेशन। लेट्स अंडरस्टैंड हाउ पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ n रजिस्टर्स एक्ट। तो स्टूडेंट्स आप ये फिगर देख रहे हैं, यहाँ भी हमने इनकम्प्लीट फिगर बनाया है, यानी हमने आपको ये नहीं दिखाया है कि कहाँ से करंट आ रहा है और किधर को जा रहा है, इसमें बैटरी दिखाई गई है। तो लेकिन बच्चों ये करंट ये आ रहा है और इधर करंट इधर निकल रहा है। ठीक है बच्चों, ये जाएगी बैटरी में वापस और ये बैटरी से आ रही है, पॉजिटिव से ये आ रही है और ये नेगेटिव की तरफ जाके मिलेगी। लेकिन बच्चों हम यहाँ पे विचार ये करते हैं कि जितना हम यहाँ पे आपको दिखाना चाह रहे हैं कि जितना टोटल करंट जो आएगा यहाँ पे पॉइंट, इस पॉइंट पे वो करंट अब 4 पार्ट में बटेगा। 4, कुछ करंट इसमें जाएगा, कुछ करंट इसमें जाएगा, कुछ करंट इसमें जाएगा, कुछ करंट इसमें जाएगा। तो बच्चों इसीलिए हमने ये सिंबल के लिए चारों में हमने सीरीज में क्या जोड़ दिया है, अमीटर जोड़ दिया है, जिसका मतलब कि चारों का इन चारों रजिस्टर में करंट अलग अलग होंगे, करंट अलग अलग होंगे। तो बच्चों मान लेते हैं कि R1 के थ्रू I1 करंट फ्लो होगा, R2 के थ्रू I2 करंट फ्लो होगा, R3 के थ्रू I3 करंट फ्लो होगा एंड R4 के थ्रू I4 करंट फ्लो होगा। तो बच्चों हम देखते हैं टोटल, लेकिन पोटेंशियल बच्चों हम जानते हैं दोनों इंड ए और इंड बी के बीच का जो टोटल पोटेंशियल है वो कांस्टेंट रहेगा, यानी वही पोटेंशियल हमारा, यही पोटेंशियल हमारा यहां भी काम करने वाला है। तो सबका पोटेंशियल हम बी मानते हैं, जो पोटेंशियल R1 के लिए है वही पोटेंशियल R2 के लिए है और सेम पोटेंशियल R3 के लिए है और सेम पोटेंशियल आपका R4 के लिए है। तो बच्चों आइए हम लेते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन में टोटल करंट। टोटल करंट, तो बच्चों टोटल करंट, टोटल करंट, टोटल करंट। अगर हम बच्चों करंट को दिखाएं I से, अब क्यों दिखाएं, क्योंकि पहले ही बता चुका हूं मैं इलेक्ट्रिसिटी का इंडिकेटर I होता है। तो क्या हो जाएगा बच्चों, आपने जितने भी लगा रखे हैं रजिस्टर्स, पहला है तो I1 करंट फ्लो होगा, दूसरा है तो उसमें I2 करंट फ्लो होगा, थर्ड हमारा रजिस्टर है उसमें I3 करंट फ्लो होगा, अब बच्चों फोर्थ में I4 करंट फ्लो होगा। तो बच्चों इसी प्रकार अगर हमारे पास और भी हमने n तक जोड़ा होता तो क्या होता, प्लस IN करंट फ्लो होता। अब बच्चों ओम के नियम से, ओम के नियम में आपने क्या देखा, I की वैल्यू बराबर B, I इक्वल B अपॉन
आर, आई इक्वल टू बी अपान आर, तो हम आई को रिप्लेस करेंगे बी अपान आर से। लेट्स ट्राई, आइए कोशिश करते हैं। तो बच्चों क्या मिलता है हमें, बी अपान आई, सही है, नो, बी अपान आर, बी अपान आर इक्वल्स बच्चों बी अपान R1, क्योंकि पोटेंशियल जो दोनों इंड का है वही सबके सारे रजिस्टर्स के इंड पे पोटेंशियल है, तो पोटेंशियल सेम है। बी अपान R1 प्लस बी अपान R2 प्लस बी अपान R3 प्लस बी अपान R4 प्लस डैश 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 बी अपान RN। तो बच्चों हम क्या करते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 1 अपान R मल्टीप्लाई बाई बी इज इक्वल टू, इसको भी लिख सकते हैं, इन सब में अगर हम b कॉमन ले लें तो बच्चों क्या हो जाएगा, 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2 प्लस 1 अपान R3 प्लस 1 अपान R4 प्लस डैश 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 1 अपान RN। बाय द कैंसिलेशन ऑफ बी बोथ साइड, दोनों तरफ ने बी को कैंसिल किया, बच्चों हमें क्या मिल गया, 1 बाई RP, 1 बाई RP इक्वल्स 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3 प्लस 1 बाई R4 प्लस 1 अपान RN। तो बच्चों ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ n रजिस्टर्स, और RP को क्या कहते हैं हम लोग, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ ऑल रजिस्टर्स कनेक्टेड इन पैरेलल, यानी पैरेलल आर्डर में जोड़े गए सभी रजिस्टरों का तुल्य रेजिस्टेंस, सबके इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कहलाता है। तो बच्चों अब अगर इसको सीधे आरपी के टर्म में निकालोगे तो रेसिप्रोकल कर देते हैं, क्या कर देते हैं बच्चों, रेसिप्रोकल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सॉल्व कर लेते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं, RP इक्वल बच्चों R1 इंटू R2 इंटू R3 इंटू R4 इंटू RN अपान क्या आएगा बच्चों, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 प्लस RN। तो बच्चों ये है हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करने का मेथड, जब सारे रेजिस्टर्स ऐड हो पैरेलल में। तो बच्चों इसके बाद में हम आपको पढ़ाएंगे इलेक्ट्रिक एनर्जी, तो इसको निकाल दें, चलिए इलेक्ट्रिक एनर्जी। स्टूडेंट्स नाउ वी विल स्टडी अबाउट
electric energy. As all of you know very well, due to some resistance present in conductor, that is supposed to be partial resistivity. हम जानते हैं बच्चों कि ऐसा कोई कंडक्टर नहीं है जिसका रेजिस्टेंस जीरो हो, तो इसमें रेजिस्टेंस के कारण जब भी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होता है तो यह रेजिस्टिविटी इलेक्ट्रिक के फ्लो होने का विरोध करता है, अपोज करता है। इस कारण अगेंस्ट रेजिस्टेंस हमें कुछ वर्क करना पड़ता है। दूसरे वर्डों में हमें जानते हैं कि चार्ज एक प्रॉपर्टी है और इलेक्ट्रॉन्स चार्ज को लेकर जाते हैं, अर्थात इलेक्ट्रॉन को हम चार्ज का कैरियर कहते हैं। तो बच्चों हम समझते हैं कि वर्क क्या होता है, W इक्वल टू क्या होता है, हमने पढ़ा था क्लास 9 में, वर्क इज इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा। तो बच्चों ये कॉस थीटा अगर किसी एंगल बन रहा हो इसके लिए लगता था, यानी फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब आइए बात कर लेते हैं, तो समझ लेते हैं कि ये फोर्स क्या हमने पढ़ा था, एम ये मास इनटू एक्सीलरेशन इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो बच्चों जो इलेक्ट्रॉन चार्ज को लेकर जाता है उस इलेक्ट्रॉन का कुछ मास भी होता है, से 9.1 इंटू 10⁻³ kg, ये हमारा इलेक्ट्रॉन का मास होता है। और 31 ये हमारा मास होता है। और एक्सीलरेशन आपको ने बताया था कि इलेक्ट्रॉन्स एक्सीलरेट होते रहते हैं, तो एक्सीलरेशन भी होता है। और ये पॉजिटिव टर्मिनल से कंडक्टर से होते हुए पूरी सर्किट की यात्रा कवर करने के बाद वापस नेगेटिव टर्मिनल पर आ जाता है, तो यानी डिस्प्लेसमेंट भी होता है बच्चों। तो इस प्रकार से जो जब भी इलेक्ट्रिसिटी किसी कंडक्टर में फ्लो होती है तो उसके लिए वर्क करना पड़ता है। और साइंस में हम जानते हैं कि वर्क डन, जो भी वर्क होता है वह कंज्यूम्ड एनर्जी के बराबर होता है। तो हम अभी कह सकते हैं कि अगर ये हमारा एक इलेक्ट्रिक सर्किट है, ये हमारा क्या है बच्चों, इलेक्ट्रिक सर्किट है, तो ये हमारा क्या बच्चों, इलेक्ट्रिक सर्किट है। इसमें हम एक बल्ब लगा देते हैं, तो हम देख रहे हैं कि अगर यहां से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी तो मान लेते हैं 1 आपको बताया कि जब भी हम कुछ चार्ज इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक आएगा तो कुछ वर्क होगा, इसमें कुछ एनर्जी लगेगी ना, और इसी एनर्जी को हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक एनर्जी। यानी चार्ज को किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लाने में जो वर्क होगा हम उसे क्या बोलेंगे, उस वर्क को करने में भाई जो वर्क होगा वो तो पोटेंशियल कहलाएगा, लेकिन जितना वर्क होगा उतना ही एनर्जी कंज्यूम भी होगी, और जिससे हम इलेक्ट्रिक एनर्जी कहेंगे। सर मेरी बात आपकी समझ में आ गई होगी, अगर नहीं आ गई तो आप समझ लेते हैं। हम पढ़े थे क्या, B इक्वल आप पढ़ते हो W बाई क्यू। इनसे हमें क्या मिलता है, W इक्वल टू बी क्यू। तो बच्चों अब हम आपको समझाते हैं कि अगर हमको क्यू चार्ज को एक बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से ले जाकर वापस पूरे सर्किट का जर्नी कंप्लीट करने के बाद ये वापस अगर नेगेटिव टर्मिनल तक आता है और उसमें हमें बी वर्क करना पड़ा, तो इस प्रकार से बच्चों टोटल एनर्जी कितना कंज्यूम हुआ, बी क्यू के बराबर। तो नाउ वी कैन डिफाइन इलेक्ट्रिक एनर्जी इन द टर्म ऑफ
इलेक्ट्रिक एनर्जी। तो स्टूडेंट्स लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी। ये इलेक्ट्रिक एनर्जी, व्हाट इज इलेक्ट्रिक एनर्जी? वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस फिनोमेनन बाय एन एग्जांपल। आई हैव drawn a rough circuit diagram. In this diagram, a cell is connected with an electric circuit. Here, cell is the charge driver because it maintains electric potential at the both end of the conductor. आप देखते हैं कि दोनों कंडक्टर के दोनों एंड पर ये सेल एक पोटेंशियल क्रिएट कर देता है। यही पोटेंशियल ही इलेक्ट्रिक चार्ज को इसके अंदर ड्राइव करता है। तो बच्चों ये हम यहाँ बना रखे हैं, बल्ब बना रखे हैं, बल्ब। अब बल्ब में क्या होगा? रेजिस्टेंस होगा। बल्ब में क्या होगा? रेजिस्टेंस होगा। आप देख रहे हैं कि पॉजिटिव टर्मिनल से ये नेगेटिव टर्मिनल की ओर धारा, यहाँ करंट फ्लो हो रहा है। तो जब यहाँ पे आएगा तो ये रेजिस्टेंस क्या करेगा? अपोज करेगा। क्या करेगा बच्चों? अपोज करेगा, विरोध करेगा। फिर इससे लड़ने में कुछ तो एनर्जी वेस्ट होगी ना। अब वह एनर्जी क्या कहलाएगी? हमारी इलेक्ट्रिक एनर्जी कहलाएगी। तो अब हम क्या कर सकते हैं? किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक इलेक्ट्रिक सर्किट के थ्रू चार्ज लाने में जो एनर्जी कंज्यूम होती है उसे हम इलेक्ट्रिक एनर्जी कहते हैं। किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक किसी इलेक्ट्रिक सर्किट से होकर चार्ज लाने में जो एनर्जी इन्वेस्ट होती है, जो एनर्जी कंज्यूम होती है, दैट एनर्जी इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक एनर्जी। तो आइए ये हम कॉन्सेप्ट, द एनर्जी कंज्यूम्ड टू ब्रिंग क्यू चार्ज फ्रॉम वन एंड ऑफ एन इलेक्ट्रिक सोर्स, दैट इज बैटरी, मे बी बैटरी और ओनली सेल। व्हाट इज बैटरी? Two combination of two or more than two cells. Two or more than two cells is called battery. This is cell. So the energy consumed to bring Q charge from one end of an electric source to another end, from one end to another end of it through some resistance. किसी रेजिस्टेंस से होकर, यहाँ पे बल्ब हमारा क्या है? रेजिस्टेंस है। इस रेजिस्टेंस को पार करता हुआ क्यू चार्ज इस पॉइंट से इस पॉइंट में लाने में जितनी एनर्जी कंज्यूम हुई, दैट एनर्जी इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक एनर्जी। थस अब सिंस बच्चों, सिंस जो एनर्जी कंज्यूम होती है वो वर्क डन के इक्वल होती है, therefore B denote consumed energy by the letter W। इसीलिए हम इलेक्ट्रिसिटी में क्या करते हैं? कंज्यूम्ड एनर्जी को W से रिप्रेजेंट करते हैं। अब बच्चों P हम लोगों ने पढ़ा है पोटेंशियल B इक्वल टू W बाई Q। क्या पढ़ा है? पोटेंशियल B इक्वल टू W बाई Q। अगर यहां से आप W को एक तरफ कर लें और बाकी Q को B की तरफ ट्रांसफर कर दें तो आप क्या पाएंगे? W बराबर BQ। तो ये W क्या है? हमारा कंज्यूम एनर्जी है और B क्या है? पोटेंशियल है और Q चार्ज है। तो इस प्रकार बच्चों हमें कंज्यूम एनर्जी W का वैल्यू किसके टर्म में मिल गया? किसके टर्म में मिला? पोटेंशियल और चार्ज के टर्म में। तो यहाँ पे W बराबर BQ, W इक्वल टू BQ इन टर्म ऑफ पोटेंशियल एंड चार्ज। तो पोटेंशियल और चार्ज के टर्म में जब आपसे पूछा जाए, इफ यू आर आस्क्ड व्हाट इज द कंज्यूम्ड एनर्जी इन टर्म ऑफ पोटेंशियल एंड चार्ज, यहाँ पे मैं पूछूंगा कि पोटेंशियल और चार्ज के टर्म में कंज्यूम्ड एनर्जी क्या होगा। तो क्या होगा बच्चों? W इक्वल BQ होगा। अब आपने क्या पढ़ा था? करंट I। देखिए करंट को हम जनरली इलेक्ट्रिक करंट ना कह के सिंपली करंट कहते हैं या केवल करंट, इलेक्ट्रिक करंट। तो बच्चों हमने क्या पढ़ा था? इलेक्ट्रिक करंट या करंट को किस लेटर से दर्शाते हैं? I से। और I इक्वल टू क्या होता है?
Q अपान T। क्या होता है Q अपान T। तो यहाँ पे बच्चों यहाँ भी अगर हम ट्रांसफर कर दें तो I इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों Q बाई T। अब T को इधर ट्रांसफर कर दो तो क्या मिलेगा Q इक्वल टू आई टी। क्या मिलेगा Q इक्वल टू आई टी। तो बच्चों यहाँ पे अगर हम हटा दें Q को तो क्या दिखाई देने लगेगा आई टी दिखाई देगा। तो अब हम आगे सिंस I इक्वल Q बाई टी हेंस Q इक्वल आई टी। अब हम अगर Q की यह वैल्यू जहाँ पे Q है वहां पे अगर हम आई टी रख दें तो हमें क्या मिल जाएगा W इक्वल, यहाँ देखिए Q की वैल्यू आ गई आई टी तो क्या हो गया W इक्वल बी आई टी। अब कंज्यूम्ड एनर्जी अगर W है तो किस टर्म में आ गया है इन टर्म ऑफ B फॉर पोटेंशियल, I फॉर करंट, T फॉर टाइम। तो अब कंज्यूम्ड ये W है ये भी W है, दिस मींस ये भी कंज्यूम्ड एनर्जी है और ये भी कंज्यूम्ड एनर्जी है, दोनों इक्वल है। लेकिन ये पोटेंशियल और चार्ज के टर्म में है और ये पोटेंशियल करंट और टाइम के टर्म में है। समझ गए। फिर से आगे देखते हैं बच्चों हम, अभी तो ओम्स लॉ बाकी है, ओम्स लॉ बाकी है। तो एक ओम्स लॉ में हमने क्या पढ़ा, हमने ये पढ़ा B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I और B इक्वल IR। क्या पढ़ा बच्चों B इक्वल IR पढ़ा। तो यहाँ पे B की वैल्यू क्या रख देंगे हम IR। B की वैल्यू क्या रखेंगे बच्चों IR। तो हमारे पास एक I पहले से ही है और एक I और आ जाएगा तो B हटा के लिखेंगे IR इंटू IT। तो क्या हो जाएगा I स्क्वायर RT। क्या हो जाएगा I स्क्वायर RT। तो बच्चों सिंस फ्रॉम ओम्स लॉ, क्योंकि ओम लॉ से B इक्वल IR होता है इसलिए हम B की वैल्यू IR रखते हैं जहां B है। तो अब W इक्वल BIT। अब W इक्वल IR, W इक्वल IR नहीं W B इक्वल, यहाँ पर बच्चों क्या आएगा B इक्वल, क्या आएगा B इक्वल IR, B इक्वल W इक्वल W ही रहेगा। अब बच्चों W इक्वल टू, क्योंकि यहाँ पे हमने क्या किया है B को हटाया, सॉरी B को हमने हटाया है किस टर्म में IR के। तो देखिए यहाँ पे B की वैल्यू, यहाँ पे B की वैल्यू क्या दिख रही है आपको ये ब्रैकेट, अब ब्रैकेट का दिख रहा है IR। देखिए IT यहाँ भी है IT यहाँ भी है और IT यहाँ भी है। तो हम यहाँ पे B को किससे रिप्लेस किए हैं IR से, B को किससे रिप्लेस किए हैं IR से। क्योंकि आपने पढ़ा भी है ओम के लॉ में क्या पढ़ा है B इक्वल IR। तो बच्चों हमने रिप्लेस कर दिया, अब हमें क्या वैल्यू मिल गई देखते हैं। तो बच्चों W इक्वल I इंटू R इंटू I इंटू T। तो फिर बच्चों I इंटू I कोई टर्म अगर जितनी बार आता है उस पर यन पावर लग जाता है। तो यहाँ पे देख लो क्या हो जाएगा I स्क्वायर RT। क्या हो गया I स्क्वायर RT। तो अब हमको मिल गया W इक्वल टू I स्क्वायर RT इन टर्म ऑफ किसके टर्म में है ये करेंट, रेजिस्टेंस एंड टाइम के टर्म में। किसमें मिल गया करंट, रेजिस्टेंस और टाइम के टर्म में हमको क्या मिल गया बच्चों कंज्यूम्ड एनर्जी। अब कंज्यूम्ड एनर्जी हमेशा वर्क डन के इक्वल होता है। तो हम कह सकते हैं कि अगर वर्क डन पूछा जाएगा हमसे तो भी यही फार्मूला होगा और अगर कंज्यूम्ड एनर्जी पूछा जाएगा तो भी यही फार्मूला होगा। अभी मुझे ओम्स लॉ से कुछ और भी याद आता है, हम ये भी तो पढ़े हैं ना I की वैल्यू B और R के भी टर्म में हो सकती है। तो अब की बात क्या करेंगे हम इस I की वैल्यू ओम्स लॉ में देखेंगे कि I की मतलब करंट की वैल्यू पोटेंशियल और रेजिस्टेंस के टर्म में क्या होता है। तो बच्चों I इज इक्वल टू क्या होता है B अपान R। I इज इक्वल टू क्या होता है B अपान R। तो यहाँ I स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा B स्क्वायर अपान R स्क्वायर। क्या हो जाएगा तो आल्सो फ्रॉम ओम्स लॉ I इक्वल B अपान R। इसलिए बच्चों क्या हो जाएगा I स्क्वायर इक्वल टू B स्क्वायर अपान R स्क्वायर। अब अगर हम
आई स्क्वायर के लिए बी स्क्वायर अपन आर स्क्वायर रखें इसी रिलेशन में, तो बच्चों यहाँ पे क्या दिखाई देगा, जहाँ आई स्क्वायर देख रहे हैं आप, यहाँ पे दिखाई देगा बी स्क्वायर अपन आर स्क्वायर। क्या दिखाई देगा, बी स्क्वायर अपन आर स्क्वायर। तो आई क्या सोचते हैं, यहाँ पे तो आई स्क्वायर दिख रहा है, लेकिन अभी ये नहीं दिखेगा, तो क्या दिखेगा, यहाँ पे दिखेगा बी स्क्वायर अपन आर स्क्वायर। तो बच्चों देखिए, अब आई स्क्वायर की जगह पे क्या दिखा, बी स्क्वायर अपन आर स्क्वायर इंटू आर टी। समझ आ रहा है ना, अंडरस्टैंड कंप्लीटली। बच्चों फिर देखते हैं, आर डब्ल्यू इक्वल टू बी स्क्वायर इंटू आर इंटू टी अपन आर इंटू आर, क्योंकि आर स्क्वायर है, 2 टाइम मल्टीप्लाई इटसेल्फ हुआ है, तो एक यानी आर कैंसिल बाय द रूल ऑफ कैंसिलेशन। तो अपवर्ड एंड डाउनवर्ड सेम क्वांटिटी कैन बी कैंसिल्ड बिकॉज द रूल ऑफ कैंसिलेशन। कैंसिलेशन नियम से ऐसा किया जा सकता है। तो बच्चों हमें क्या मिल गया ऊपर, बी स्क्वायर टी बाई आर। तो हम कह सकते हैं बी स्क्वायर टी बाई आर, ये भी हमारा कंज्यूम एनर्जी का फार्मूला है। और बच्चों हमने बताया आपको कि एनर्जी का यूनिट क्या है, जूल। क्या है, जूल। और वर्क डन का भी है जूल, तो अब बच्चों मैं जा रहा हूं आपको बताने, सबसे छोटा यूनिट यानी वर्क डन या कंज्यूम्ड एनर्जी का सबसे छोटा यूनिट क्या होगा, सबसे छोटा यूनिट इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा। क्या होगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब देखते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और देखते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट। स्टार्ट विद द वेरी स्मॉल यूनिट ऑफ electric energy, that is electron volt. 1 electron volt energy is the equivalent energy consumed to bring a charge of an equivalent to the charge of 1 electron. This means 1 electron volt equals 1.6 into 10 power minus 19 coulomb, that is joule. If we convert this charge into the term of work done, that is equivalent to consumed energy. Thus 1 electron volt, that is the very small unit of energy, is equal to 1.6 into 10 power minus 19 joule. Our electron volt is not so much important topic. It is only the small unit of energy, not more than that. It has no conceptual importance in class 10 students. So I think we should study further in the chapter about the remaining concepts. Students, as far as so as we can see the figure of an electric circuit. In this electric circuit, several resistors 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Students, as we know, जैसा कि हम जानते हैं, we can't express the resistivity of some electric appliances like fridge, cooler, fan, motor, electric iron and some electronic items in the term of resistivity. Hence we have decided to represent all the resistance of the appliances in the term of resistance. तो इसको हम लेट कर लेते हैं। ये हमें दिख रहा है सेल से सिमिलर ऑब्जेक्ट दिख रहा है, बट हम इसे आगे ये कंज्यूम करेंगे या हमें एक ग्रेट पोटेंशियल डिफरेंस लाइक 220 वोल्ट इलेक्ट्रिक सोर्स है, वो भी हमें स्टडी हम यहाँ पे करेंगे टोटल डीसी के टर्म में। और इस फैक्ट को हम मानेंगे कि हमें यहाँ पॉजिटिव से नेगेटिव इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है, जबकि एसी में ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। फिर आइए हम पढ़ते हैं, जब इलेक्ट्रिक सोर्स दैट इज द चार्ज
कैरियर, चार्ज कंडक्ट, चार्ज ड्राइवर, यही चार्ज को ड्राइव करता है। तो यहाँ पे अगर चार्ज आता है तो यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस होता है। इस रेजिस्टेंस को फेस करने के लिए इस इलेक्ट्रिक करंट को कुछ एनर्जी कंज्यूम करनी पड़ती है, और इस कंज्यूम एनर्जी के कारण इसमें कुछ हीट एनर्जी प्रोड्यूस हो जाती है। इसी को हम बोलते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। आइए और समझते हैं। अगर जब हम जाते हैं तो हम जानते हैं रेजिस्टिविटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए सब्सटेंस दैट अपोजेस द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। Just imagine what would happen when electricity passes through the resistance. For example, let's understand by the giving example of an electric bulb. हम इसे एक इलेक्ट्रिक बल्ब मान करके समझने का प्रयास करते हैं, ट्राई करते हैं, और इसे टंगस्टन का फिलामेंट एज्यूम कर लेते हैं और ये इमेजिन करते हैं what happen when electricity passes through टंगस्टन फिलामेंट। आप जानते हैं फिलामेंट स्प्रिंग के रूप में होता है, कॉइल के फॉर्म में होता है, जिससे उसकी लेंथ काफी लंबी होती है। हम जानते हैं कि हमारी जो रेजिस्टेंस होता है वो कंडक्टर के या रजिस्टर के लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इस कारण इसका रेजिस्टेंस बहुत हाई होता है और इसका मेल्टिंग पॉइंट भी बहुत हाई होता है। इस कारण जब यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है तो जो एनर्जी कंज्यूम होती है वह हीटिंग एनर्जी के फॉर्म में इस फिलामेंट में दिखाई देता है, और हम लाइट एनर्जी के साथ साथ हीट एनर्जी भी एक्सपीरियंस करते हैं। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं when electricity passes through some resistance, due to the opposite of resistance, the resistance becomes hot. This effect of electricity is called heating effect of electricity. Let's try to understand something more. अब सोचते हैं कि क्या होगा अगर ये एनर्जी का कंज्यूमशन कंटिन्यू चलता रहा। तो आइए समझते हैं, या हम इसे एक हाउस होल्ड वायरिंग मान लेते हैं, एक हाउस होल्ड वायरिंग का सर्किट मान लेते हैं, जहां से हमें 220 वोल्ट पोटेंशियल के इलेक्ट्रिक सोर्स मिला हुआ है। और अब करंट का डायरेक्शन अगर हम स्विच को ऑन कर देते हैं, यहाँ पे हमने स्विच लगा रखा है जिसे हम की से डिपेंड करते हैं, के से। अगर स्विच को ऑन कर देते हैं तो जो इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन होगा वो पॉजिटिव टू नेगेटिव होगा। और अब देखते हैं इस रेजिस्टिविटी को क्रॉस करने में इलेक्ट्रिसिटी को कुछ एनर्जी कंज्यूम करनी होगी। अब वह कंज्यूम एनर्जी कितना होगा? अगर हम कमर्शियल यूज में, फॉर एग्जांपल कमर्शियल पर्पस के लिए इलेक्ट्रिक एनर्जी का यूज करें कुछ डिवाइसेस को ऑपरेट करने के लिए या कुछ मशीन्स को ऑपरेट करने के लिए, लाइक आजकल आप जानते हैं स्पाइस मीन्स मसाले होता है, मसाले पीसने के लिए, या फिर हम कहते हैं व्हीट क्रशिंग के लिए, या हम कहते हैं शुगर केन क्रशिंग के लिए अगर हम इलेक्ट्रिक पावर का इस्तेमाल करते हैं, या वाटर ड्रॉप, टिल्लू पंप तो आज कॉमन है, अगर हम इसको यूज करते हैं तो हमें कितना इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम करते हैं और किस प्रकार से उसका हम कमर्शियल स्तर पर यूज करें, या जानने के लिए हम फिर पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक एनर्जी का मापन, हाउ टू मेजर कंज्यूम इलेक्ट्रिक एनर्जी, ये हमने पीछे पढ़ा है। अब आगे हम पढ़ेंगे कि पावर। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि अगर हमारे घर पे बल्ब आते होंगे जिस पे लिखा होगा 100 वाट 220 वोल्ट, इसका यह मीनिंग होता है कि अगर इसको ऐसे इलेक्ट्रिक सोर्स से कनेक्ट किया जाए जिसके दोनों एंड पे पोटेंशियल डिफरेंस 220 वोल्ट हो, तो वह पर सेकेंड 100, अगर किसी इलेक्ट्रिक बल्ब पर लिखा है 100 वाट 220 वोल्ट, इसका मीनिंग है अगर इस बल्ब को 220 वोल्ट इलेक्ट्रिक सोर्स से कनेक्ट किया जाए तो पर सेकेंड यह 100 वाट एनर्जी कंज्यूम करेगा।
तो ये हम इसका पावर होता है। अब हम पावर भी आगे देखते हैं। अब पावर को हम देखते हैं, पावर पावर क्या होता है, द रेट ऑफ डूइंग वर्क। तो हम अब तक कंज्यूम एनर्जी ई को डब्ल्यू के टर्म में पढ़ चुके हैं और ये भी हम स्टडी कर चुके हैं कि वर्क डन इज ऑलवेज इक्वल टू द कंज्यूम्ड एनर्जी। हेंस वर्क डन क्या हो जाएगा, डब्ल्यू इक्वल्स वर्क डन, डब्ल्यू इक्वल्स कंज्यूम्ड एनर्जी। तो हमने अभी जस्ट प्रीवियस क्या देखा है, कंज्यूम्ड एनर्जी फाइंड करने के लिए हमने उसको देखा बी पोटेंशियल डिफरेंस और क्यू जो कि हमारे चार्ज के टर्म में हमने निकाला। फिर उसके बाद बी इक्वल किस टर्म में निकाला, पहले कंज्यूम्ड एनर्जी डब्ल्यू को बी और क्यू के टर्म में निकाला। बी यहाँ पे क्या था, पोटेंशियल डिफरेंस था और क्यू क्या था, चार्ज था। फिर हमने कंज्यूम्ड एनर्जी क्यू को इलेक्ट्रिसिटी I इज इक्वल टू क्यू बाई टी से क्यू की वैल्यू आई टी फाइंड किया था। तो हमने वहां पे रखा था, क्या रखा था, W इक्वल बी आई टी। फिर वहां पे हमने ओम्स लॉ से टर्न बाय टर्न एक बार हमने I की वैल्यू रिप्लेस करी थी B और R के टर्म में, और थर्ड टाइम हमने क्या किया था, सेकेंड टाइम हमने B की वैल्यू I और R के टर्म में रखी थी। तो इस प्रकार अब हमें क्या कर देना है, W बाई टी हम जानते हैं रेट का तात्पर्य हमारे यूनिट टाइम में किए गए वर्क या यूनिट टाइम में कितना वर्क होगा, यूनिट टाइम में जितना एनर्जी कंज्यूम होगा। तो हम कह सकते हैं P इक्वल हम कह सकते हैं इसमें पावर निकालेंगे। नाउ वी विल अंडरस्टैंड द मेजरमेंट ऑफ हीट एनर्जी दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल H in term of calorie. As we know, 1 calorie is equal to 1 joule upon 4.2 calorie. As H is equivalent to W if H is measured in the term of joule. But as generally consumed heat energy or produced heat energy is measured in the term by the using unit of calorie, hence the work done is divided by 4.2 to obtain the heat energy in calorie unit. Hence W equal BQ. Hence heat energy in the term of calorie is equal to BQ by 4.2, as 1 joule is equal to 1 upon 4.2 calorie. From electricity I is equal to Q by T, we get the value of Q as IT. By replacing Q using IT, we get value of H is equal to B IT by 4.2. The importance is as previous. 1 joule is equal to 1 upon 4.2 calorie. Now we will use Ohm's law and we will try to write the value of B in term of I and R. B equal to IR. Hence I into R is equal to I square RT upon 4.2. That is the generalization commercial unit calorie. As 1 calorie is equal to 1 upon 4.2 joule is equal to, this time we will get the value of I square B in the term of B square. I equal B by I equal B by R. Hence we get I is equal to B square
I square is equal to B square upon R square. R will be cancelled. Thus, heat consumed or produced heat is equal to B square upon T upon 4.2 into R. B square into T upon 4.2 R, where R is resistance. All the values of heat energy produced in term of calorie unit. 1 calorie is equal to, once again, 1 calorie is equal to 1 by 4.2 joule. This is the conversion relation. This is the relation between calorie and joule. Now we will define power. What is power? The rate of work done or the rate of consumed energy is given name as power. Power. You can also define the rate of work done and consumed energy can be termed as power. Power is represented by capital letter P, and value of work done in the term of joule upon value of time taken in the term of second. Thus, joule per second is given term as watt. Thus, 1 watt, thus 1 watt power can be defined as when 1 joule work is done to do any work for 1 second. Thus, joule per second is equivalent to watt. Now we will derive the relation of P with work done. First, P equal work done upon time taken. B can replace work done by W and time taken by T. Further, as soon as we replace the value of W in term of BIT by T, यहाँ से हमको मिलती वैल्यू TT कैंसिल, P इक्वल B into I, अर्थात वैल्यू ऑफ P is in the term of potential difference and current flowing in it. Okay, P equal to B into I. Further, P equal BIT by T. By cancel we get BI. Now we will try to replace the value of B from Ohm's law. So B equal IR. Thus I into I square into R. I square into R. Further, P is equal to I square into R. Thus, power of an electric device can be measured or can be found out by using the current flowing in it and the resistance of that device. Further, if second time we derive the value of I in term of potential difference and resistance, I is equal to B by R. If we replace the value of I square, we will get B square by R square. B square by R square. In this calculation, R and upon R into R, 1 R will be cancelled and only 1 R will be left as denominator. Thus, P is equal to B square upon R square. Thus, we can measure the consumed energy in all the three terms. Hence, same way, we can find the power of an electric appliance
or power of any device that can be operated with electricity can be measured in all the three terms. Now we will define some practical units, or some commercial units. हम यहाँ पे सीखे वाट, हमने यहाँ पे क्या सीखा? वाट. अब W/T क्या आता है हमारा? वाट. क्या आता है? वाट. वर्क डन बाय टी यानी जूल पर सेकेंड, वाट. लेकिन ये पावर का इतना छोटा यूनिट है कि हम और बड़े यूनिट के लिए HP यूज करते हैं. क्या यूज करते हैं? HP, हॉर्स पावर. क्या यूज करते हैं? हॉर्स पावर. हॉर्स पावर इज ए कमर्शियल यूनिट. वन, आप लोगों के घर पे इलेक्ट्रिक मोटर लगे होंगे जो अथवा आपके यहाँ ट्रैक्टर्स भी होंगे जिनकी पावर को हम हॉर्स पावर में मेजर करते हैं. तो 1 हॉर्स पावर इक्वल्स 746 watt. This is commercial unit of power. But how we find consumed energy with respect to power? Students, if an electric device whose power equal 1 watt, कोई हमारे पास इलेक्ट्रिक अप्लायंस है. आप कहेंगे सर ऐसा इलेक्ट्रिक अप्लायंस क्या होगा जिसका पावर 1 वाट हो? तो आजकल नाइट बल्ब के रूप में LED आते हैं कलर्ड, जिनका पावर होता है 1/2 वाट. 1/2 वाट 0.5 वाट. तो हम यहाँ पे ऐसे इलेक्ट्रिक अप्लायंस डिवाइस की चर्चा कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं जिसका पावर 1 वाट है. अगर हम 1 वाट पावर वाले किसी इलेक्ट्रिक अप्लायंस को 3 × 6 × 3.6 × 10⁻⁶ अर्थात 1 आवर तक कंज्यूम करें या उससे वर्क लें, उसे ऑन रखें, तो बच्चों 1 यूनिट कहते हैं किलो वाट घंटा. kWh किलो वाट आवर. kWh K for 1000 watt hour. H stand for hour. 10 किलोवाट आवर इज सेम एज यूनिट. और हम लोग जो पेमेंट देते हैं, जो बिजली का, इलेक्ट्रिसिटी का जो चार्जेस हम पे करते हैं, वो यूनिट के टर्म में पे करते हैं. और इस प्रकार से अब हम कुछ और भी इलेक्ट्रिक अप्लायंस के बारे में पढ़ लेते हैं. पहले हम जानेंगे कि किन किन चीज़ों पे हम यूज कर सकते हैं. इसमें हम इसके पहले इलेक्ट्रिक सर्किट का फिगर बनाए थे जिसमें हमने कई रेजिस्टेंस लिया था. अब कुछ इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस के बारे में चर्चा करेंगे. उदाहरण के लिए इलेक्ट्रिक बल्ब, ये किस थ्योरी पे काम करता है हम बता चुके हैं कि इसमें जो फिलामेंट जो हमें ग्लो होते हुए दिखाई देता है, जिसे हम सीन करते हैं, इज मेड अप ऑफ टंगस्टन. टंगस्टन का बना होता है. इसका मेल्टिंग पॉइंट नियरली 3000 से अबव होता है. और जब यह नियरली 2000 डिग्री सेंटीग्रेड तक इसका टेम्परेचर बढ़ जाता है तो यह केमिकली रिएक्टिव हो जाता है, रिएक्शन करने लगता है. इस कारण इनमें इनर्ट गैसेस भरी होती हैं. और हम और कुछ एग्जाम्पल लेते हैं हीटिंग इफेक्ट का. घर में कपड़ा, क्लॉथ को आयरन करने के लिए, प्रेस करने के लिए इलेक्ट्रिक आयरन का यूज आपने करते हुए देखा होगा, गीजर देखा होगा. इन सब में भी जो फिलामेंट्स बने होते हैं ऐसे अप्लायंस के, वे ऐसे अलॉय से बने होते हैं जिसकी मेल्टिंग पॉइंट
थोड़ा एज कंपेयर विद टंगस्टन लो होता है, बट रेजिस्टेंस हाई होता है। इस कारण जब इलेक्ट्रिसिटी वहां से पास होती है तो उसकी हाई रेजिस्टिविटी इलेक्ट्रिसिटी फ्लोइंग का अपोज करती है और ये लॉट ऑफ हीट जनरेट होता है, जिसका यूज हम कई पर्पज को कंप्लीट करने के लिए करते हैं। हीटर भी आप एग्जाम्पल ले सकते हैं, जिनके वायर नाइक्रोम के बने होते हैं, और गीजर में मैंने कहा ये भी एक वाटर को हॉट रखने का एक सिस्टम है। इन सभी में हाई रेजिस्टिविटी और मेल्टिंग पॉइंट वाले एलॉय के बने हुए फिलामेंट्स यूज किए जाते हैं, जिससे जब इनमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है तो हाई रेजिस्टिविटी प्रॉपर्टी के कारण ये लॉट ऑफ हीट जनरेट होता है और हम डिफरेंट पर्पज से यूज करते हैं। वाटर को गर्म करने में, भोजन को पकाने में, फूड को कुक करने में। तो स्टूडेंट्स, इस प्रकार से हम आगे इसी अक्टूबर फर्स्ट वीक से हमारे टेस्ट के भी वीडियोस आने लगेंगे, तो हम इन सारे कॉन्सेप्ट पर एक एक करके टेस्ट वीडियोस डालेंगे। और इसी के साथ हमारा चैप्टर फर्स्ट ऑफ फिजिक्स जो मैंने स्टार्ट किया है एनसीईआरटी के बुक से, चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रिसिटी, उसका एंड होता है। स्टूडेंट्स, गुड नाइट।